بقول اقبال نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی۔ تعلیم تہذیب و اخلاق سے روشناس کراتی ہے۔ تعلیم پر ہی انسان کی ترقی کا دار و مدار ہے اور انسان کی فکر کی بالیدگی اور شعور کو منحصر ہے۔ علم سے بے بہرہ انسان حقیقت میں زندگی کے میدان میں فکری اور عملی ہر لحاظ سے پیچھے رہ جاتا ہے۔ رب زدنی علماً، علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر جانے تک۔ علم وہ دولت ہے جسے کوئی چرا نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ علم حاصل کرنے کے لیے ہم یہ اگر پیغام چین لوگوں بھی کو دینا جانا پڑے چاہتے ہیں تو کہ جائیے تعلیم اور کے بغیر علم قوم کی حاصل ترقی کیجیے۔ ممکن ہی نہیں ہے۔ ہم تعلیم کے فروغ کے لیے الحمد ایجوکیشنل آرگنائزیشن کے بچوں کو لے کر نکلے تاکہ وہ عوام میں یہ پیغام دے سکے کہ تعلیم ضروری ہے، تعلیم کے بغیر ہم ترقی نہیں کر سکتے، اور تعلیمی ایک ایسا ہتھیار ہے جس کے ذریعے ہم دنیا کو فتح کر سکتے ہیں۔ دنیا آج کہاں سے کہاں نکل گئی ہے۔ دوسرے لوگ جو ہے تعلیم حاصل کر کے ترقی کی منزلوں ہم سے منزلوں آگے ہیں اور ہم بہت پیچھے رہ گئے۔ اسی لیے ہمارا یہ پیغام ہے کہ تعلیم عام ہو۔ تعلیم کے فروغ کے لیے، تعلیم کی ترقی کے لیے آج ہم لوگ اپنے بچوں کو لے کر سو پر نکلے ہیں، اور ہمارے بچوں نے یہی پیغام دیا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو تعلیم دیجیے تاکہ وہ ترقی کر سکیں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں ہم بہت پیچھے رہ گئے، جس کی وجہ سے ہماری ترقی نہیں ہو رہی ہے۔ اس لیے ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں آگے بڑھے تاکہ ہماری قوم بھی آگے بڑھے، ہمارا ملک بھی آگے بڑھے، ہماری ملت بھی آگے بڑھے، ہماری قوم بھی آگے بڑھے اور یہ اسٹیٹ بھی آگے بڑھے۔ آپ سے میرا ایک سوال ہے کہ آج ابوالکلام آزاد کا یوم پیدائش، اس موقع پر آپ طالب علموں کو خاص طور سے ایک ٹیچر کی حیثیت سے کیا کہنا چاہیں گے؟ آج جیسا کہ یوم قومی تعلیم ہم یہ جانتے ہیں کہ مولانا ابوالکلام آزاد صاحب کی پوری زندگی تعلیم و تربیت کے علاوہ صحافت اور سیاست میں گزری اور مثبت پہلو لے کر آگے بڑھے۔ ان کا جو سب سے بڑا اہم کارنامہ ہے کہ وہ پہلے ہمارے ملک کو آزادی جب ملی تو پہلے وزیر تعلیم تھے، اور انہی کی وزارت میں رہتے ہوئے انہوں نے جس طریقے سے مختلف اداروں کو، تعلیمی اداروں کو فروغ دیا ہے، وہ آج بھی یہ حقیقت چھپی نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ لوگ اس کا نام نہ لیں، لیکن ان کے کنٹریبیوشن کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ہماری ضرورت یہ ہے کہ اب ہمارے جو بچے ہیں، جو ملی بچے ہیں، وہ بھی آگے بڑھیں اور اس خواب کو جو انہوں نے دیکھا تھا اس کو وہ پورا کریں۔ اور اگر اس معاملے میں ہم لوگ کسی بھی کام آئے تو ہم لوگ سمجھیں کہ ہم لوگوں کی محنت اخارت نہیں گئی۔ تعلیم کے شعبے میں سر الحمد ایجوکیشنل آرگنائزیشن بہت بڑا کام کر رہی ہے، اس کے بارے میں کیا الحمدللہ اس کے بارے میں میں تقریباً اس ادارے سے 12-13 سال سے میں جڑا ہوں۔ میں پکڑ کے لایا گیا تھا، یہ ہمارے بزرگ بیٹھے موجود ہیں، اس وقت سے لے کر آج تک میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس ادارے نے 2 قدم اپنے آپ کو ہمیشہ اور اداروں سے آگے رکھا ہے، اور یہ وہ ادارہ ہے جہاں مختلف اسکول کے بچے بچیاں آتے ہیں اور بہتر سے بہتر رزلٹ کرتے ہیں۔ یہاں کی جو اساتذہ کرام ہیں، یہاں کی جو انتظامیہ ہے، اس کا پہلا ایم یہ ہے کہ بہتر سے بہتر تعلیم کی طرف جو جدوجہد ہو، مالی ہو یا جسمانی ہو، اس میں یہ بہت پیش رہتے ہیں۔ تو جب یہ پیش رہتے ہیں تو ہم کیوں پیچھے رہیں؟ ہمارا بھی کام یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو علم کے زیور سے سنواریں تاکہ ملک و قوم و ملک کا جو ہے نام روشن ہو، اور علم کے میدان میں ان کا بھی بہت بہت شکریہ۔ بحیثیت طالب علم، تعلیم ہو سکتا ہے، کتابی تعلیم ہم حاصل کر لیے اپنے آپ میں ایک ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم اس سے فارغ ہو گئے، مگر انسان جنم سے لے کر کے آخری لمحے تک اپنے آپ کو اگر بحیثیت طالب علم رکھیں گے تو کہیں نہ کہیں زندگی میں بہت کچھ سیکھنے کو موقع ملتا ہے۔ اس دوران گفتگو ہم ربندر ناتھ ٹیگور کو یاد کرنا چاہتے ہیں، کاکا نظر الاسلام کو، مولانا ابوالکلام آزاد کو یاد کرتے ہیں۔ وہ خود کو بھی پہچان بحیثیت طالب علم رکھتے تھے، اور آج الحم ایجوکیشنل آرگنائزیشن کے جانب سے جو آج پروسیشن نکالا گیا علاقائی طور پہ، وہ یہ درج دینے کے لیے، وہ لوگوں کو بتانے کے لیے کہ تعلیم سے جڑے،
प्रोसेशन तो बहुत निकलता है, जलूस तो बहुत निकलता है, सियासी लोग भी निकालते हैं, सामाजिक लोग भी निकालते हैं, मगर हम अपने इलाके के जानिब से खुसूसन डॉक्टर निहाल साहब के क़यादत में जो हम लोग सीख रहे हैं समाज में किस तरीके से रहा जाए। और हमारे भाई कह रहे थे कि सिर्फ तालीम नहीं, तालीम के साथ साथ हमारे समाज में तरबियत का भी बहुत ज़रूरी है। तालीम एक ऐसी चीज़ है कि बच्चों के अंदर मगर तालीम आता है तो तरबियत आता है, कॉन्फिडेंस आता है, अच्छे बुरे में तमीज़ आता है, बड़ों में एहतराम आता है। तो बाहैसियत तालीम अलहम एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हम अगर कारकुन हैं, मगर हम कारकुन नहीं समझते हैं, ख़ुद को अब तालिब इल्म समझते हैं और इन लोगों के दरमियान में रह करके कुछ अच्छी चीज़ सीखने की कोशिश करते हैं। और अपने आने वाले नौजवानों को भी हम ये दर्ज देंगे कि अपने बुज़ुर्गों का, चाहे वो घर के वालिदैन हों या इलाके के बुज़ुर्ग हों, उनके दरमियान में रहें, अच्छी चीज़ सीखें और समाज को अच्छा चीज़ दें। अलहम एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन आज जो मुसलसल 16 सालों से फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों में जो कोचिंग की जो सिलसिला वो चालू किया गया है, आपको जान करके हैरत होगा, सेंट्रल कलकत्ता के अंदर में आप किसी भी बड़े से बड़े स्कूल में बहुत ईज़िली आप एडमिशन करवा सकते हैं, अपने बच्चे को डाल सकते हैं, मगर अच्छे टीचर का, अच्छे कोचिंग का बहुत कहीं ना कहीं यहाँ पे क्राइसिस है, जिसको दूर करने के लिए जो बेड़ा उठाए हैं डॉक्टर निहाल साहब के इंटायर टीम को हम मुबारकबाद पेश करते हैं और अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि ये इनकी इंटायर टीम, इनके तमाम वेल विशर जिस तरीके से अपने फ़राइज़ को अंजाम दे रहे हैं, इसी तरीके से अपने ये सिलसिला को बरकरार रखें। अल्लाह से ये दुआ है। इसी के बाद अपनी बात को ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। आज यौम तालीम के मौके पे हम तमाम लोग इकट्ठे हुए समाज को बेदार करने के लिए, तालीम के तई बेदारी पैदा करने के लिए। हम तमामी मेंबरान, उस्ताद मोहतरम सैयद हसन साहब, इलाके के एक्स काउंसिलर जनाब परवेज़ साहब और तूफ़ान अली ताज साहब, जनरल सेक्रेटरी साहब जो हमारे निहाल साहब की तमाम लोग, कोशिश दिलसारुल हक साहब और हमीद साहब, तमाम लोग, एहसान भाई, सबों की कोशिश से आज का ये प्रोसेशन जो निकाला गया इलाके में गश्त की, धनबाड़ी लैन, गाइदत स्ट्रीट, ज़करिया स्ट्रीट, डमजल लैन, उसके अलावा तमाम जगहों के लोगों को आगाह किया गया कि आप तालीम के तई अपने बच्चों को बेदार रखें, खुद भी बेदार हों और तालीम से जुड़ें। हमारा मकसद ही तालीम है। तालीम के तई हम बेदारी के लिए आज ये जुलूस निकाले, इसलिए हम सब लोग आज की प्रोसेशन में शामिल हुए। बहुत बहुत शुक्रिया। आप रब्बे ज़िदनी इल्मन, इल्म हासिल करो माँ की गोद से कब्र जाने तक। इल्म वो दौलत है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। अल्लाह के रसूल ने कहा कि इल्म हासिल करने के लिए अगर चीन भी जाना पड़े तो जाइए और इल्म हासिल कीजिए। अलहम्द एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन के जानिब से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह के यौम पैदाइश के मौके पर इल्म को फ़रोग देने के लिए आज एक मिशन के तहत तलबा और तलबात ने जुलूस के शक्ल में कोलकाता के मोहम्मद जान हायर सेकेंडरी स्कूल, बलाई दत्ता रोड से कोलूटोला, हरनबाड़ी लेन, डोमजन लेन, फेयर्स लेन, जकरिया स्ट्रीट तक एक काफ़िला सैकड़ों की तादाद में, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह डॉक्टर निहाल अहमद पेश रहे। इसके अलावा उसातिज़ा कराम की एक टीम भी साथ में इस काफ़िले के साथ शामिल रही और समाजी कारकुन इरफान अली ताज भी इस काफ़िले के साथ साना बसाना खड़े रहे और तालिब इल्मों की इस कारवां में आखिर तक उन्होंने हिम्मत अफजाई की। अलहम्द एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन कई बरसों से फ्री कोचिंग क्लास तालिब इल्मों को देती आ रही है। नीट और दीगर मुकाबलाती इम्तहानात की तैयारी और गाइडलाइन भी
देती आ रही है। आइए हम इसके सरबराह से बात करते हैं कि उन्होंने इस मौके पर क्या कुछ कहा। इसी हवाले से एक छोटी सी कोशिश है कि हमारे बच्चे आज मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश है, उनकी यौम पैदाइश को सारे मुल्क में यौम तालीम के नाम से मनाया जाता है। मौलाना हमारे मुल्क के पहले वज़ीर तालीम थे। उन्होंने तालीम के लिए बहुत कुछ किया। इस मुल्क में तालीम के जितने अदारे हैं उन सब को मौलाना ने कायम किया। मौलाना के खिदमत बहुत वसी है। उन्होंने अपनी जान माल सब कुछ हिंदुस्तान की तरक्की में लगा दिया। मनाया जाता है। हम लोग इसी हवाले से बच्चों के साथ निकले हैं कि लोगों में इल्म के शौक़ उजागर करें, उनके दिलों में इल्म की मोहब्बत पैदा करें, उनकी रहबरी करें तो अपने बच्चों को तालीम दें। जो जुलूस तालीम एजुकेशन डे के जरिए जो दोस्त निकला है बहुत अच्छा है, लेकिन सबसे आज जो ज़रूरत है एजुकेशन के साथ तहजीब कल्चर। अगर कल्चर नहीं होगा, तालीम का लोग की कमी नहीं है आज दुनिया में, लेकिन तहजीब अगर नहीं होगी तो वो तालीम का लोग खतरनाक बन सकते हैं। जो आज पैलेस्टाइन पर जिस तरीके से जुल्म हो रहा है, जो कर रहे हैं वो तालीम का लोग हैं, लेकिन उसको किस तरीके से साइंस और टेक्नोलॉजी को गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए आज का सबसे बड़ा मैसेज है खासतौर पर स्टूडेंट्स को, जो बाबू तुम तालीम तो हासिल करो, उसके साथ तहजीब भी हासिल करो। बस मैं शुरुआती दिनों में अलहम एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन का तालिब इल्म रहा। जब मैं 2009 का तालिब इल्म। थोड़ा जोर बोलिए। मेरा कहना यही है कि तालीम हासिल करना है, लेकिन उसके साथ साथ जो बातें आई यहाँ पे तहजीब, किरदार, इन सारी चीज़ों के साथ, जैसे आज हम लोग मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को याद करते हैं, उनके साथ साथ अशफाक़ुल्लाह खान, भगत सिंह, जैसे आज़ादी के मतवालों को भी हमें याद करना चाहिए। स्कूलों में, ट्यूशन में, कोचिंग में इनका चर्चा होना चाहिए, ताकि हम जान पाएँ कि तहरीक आज़ादी में जो आज़ादी हमें मिली, आज जिस ख्वाब, जो उनका ख्वाब था कि सभी के लिए तालीम हो, वो कहीं ना कहीं अधूरा है। इस ख्वाब को भी हम लोग पूरा करने के लिए 2 कदम आगे बढ़ाएं। इसी ख्वाब को पूरा करने में अलहम एजुकेशन भी काम कर रहा है, हम लोग भी करें। इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी बात बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, मुकम्मल बात बोलती है।